टुडे न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल, बालाजी फैशन और आरती एंड सन्स। नमस्कार, सिटी टुडे न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम लोग अपने इस स्पेशल बुलेटिन में बात करेंगे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर। बिहार से शुरू हुआ ये SIR अब देश के 12 राज्यों में होने जा रहा है, जिसमें हमारा पश्चिम बंगाल भी शामिल है। तो सबसे पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जिन 12 राज्यों का नाम SIR के लिए चुनाव आयोग ने चयनित किया है, उनमें अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। भारत के निर्वाचन आयोग ने SIR को लेकर अपना पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के आधार पर यह लागू हो गया है कि 28 अक्टूबर बंगाल सहित उन तमाम 12 राज्यों में SIR आज से विधिवत लागू हो गई है। SIR करने वाले BLO को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक BLO आपके घर जाएंगे और घर घर जाकर गणना का काम करेंगे। वो लोगों को फॉर्म उपलब्ध कराएंगे, फॉर्म फिलअप करवाएंगे और आपसे दस्तावेज लेकर उसे लिंक करने का काम करेंगे। इसके बाद चुनाव आयोग 9 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा। इसी दौरान 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, त्रुटि, आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया चलेगी और 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक इन त्रुटियों, आपत्तियों पर सुनवाई और सत्यापन का दौर चलेगा। अंततः 7 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। আমাদের আপনারা জানেন আমাদের স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন এটা অলরেডি ঘোষণা হয়ে গেছে। কাল থেকে ওটা অলরেডি অ্যাক্টিভিটিগুলো চালু হয়ে গেছে। ওটারই প্রথম আজকে আমাদের এটা প্রিপারেটরি কাজ হিসাবে আজকে পলিটিক্যাল পার্টির সঙ্গে আমরা মিটিং আমরা করেছি। এখানে আমাদের মূলত মানে SIR এর যেটা স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশনের যে কাজগুলো হবে ওটা ওনাদেরকে বলা হলো। তারপরে ওনাদের যে ভূমিকাগুলো ওটাও বলা হলো। আর ওনারা যে BLA অ্যাপয়েন্ট করতে হবে প্রতিটা বুথে ওটাও আবেদন করা হলো, যেহেতু টাইমটা অনেক কম আছে। আর আমরাও BLAদেরকে ট্রেনিং দিতে হবে, একটু টাইম লাগবে আমাদের। ওটা ওনাদেরকে বলা হলো তাড়াতাড়ি BLA অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো করে দিতে। আর মূলত পুরো প্রসেসটা ওনাদেরকে বুঝিয়ে বলা হলো। অনেকটা প্রশ্ন ছিল ওনাদের, ওটা বুঝিয়ে বলা হলো। আর এরপরে আমাদের এই অ্যাক্টিভিটিগুলো একটু আমি বলে দেবো, যেটা আমাদের এই ক্যালেন্ডার যেটা এসছে এখন 3 তারিখ অবধি, 28 তারিখ থেকে 3। দেখুন এই নির্দেশটা মতলব ওটা আগে থেকে মতলব এটা আমাদের দেওয়ার দেওয়ার এটা আমরা কিছু পলিটিক্যাল মানে কিছু পার্টি থেকে আমরা একটা সাজেশন পেয়েছি, কিছু গ্রিভেন্স পেয়েছি, আমরা সিও অফিসকে জানাবো। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় একাধিক ভারী শিল্প রয়েছে, রেল, সেল, CLW মতো কারখানা, যেখানে বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ কাজ করতে আসে। তাদের ক্ষেত্রে তো 2002-এর তালিকায় নাম তোলা সম্ভব হবে না। 2002-এর পর যারা এসছে সেই ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা পড়বে। যেটা ম্যাপিংয়ের যেটা হয়নি, ম্যাপিং নিজেই করতে পারে, নিজের বাবার করতে পারে, নিজের গ্র্যান্ডফাদারই করতে পারে, এইতটুকু মানে এই অপশনগুলো দেওয়া আছে। আর ফ্যামিলি মেম্বার, ব্লাড রিলেশন কারোরও ম্যাপিং করা যেতে পারে। শুধু এখানে করতে হবে বলে নেই, বাইরে স্টেটে থাকলেও করতে পারে, বাইরে ডিস্ট্রিক্টে থাকলেও করতে পারে। সো আমরা এটাই দেখবো, মতলব ও এখানে মানে এসে ধরুন 2002-এ অন্য জায়গায় ছিল, এখন এখানে এসে ভোটার হয়েছে, মানে এনুমারেশন ফর্ম যাদেরকে দেবো ভোটারকে দেবো যারা ভোটার আছে। সো এখনকার ভোটার হয়েছে, 2002-এ অন্য জায়গায় ভোটার ছিল, তাহলে ওদেরকে জিজ্ঞাসা করে নিয়ে আমরা প্রথমে চেষ্টা করবো ম্যাপিং করে নিতে।
মতলব 2002 কোথায় ছিলেন এটা করে ওটা আমরা চেষ্টা করব ওদেরকে ম্যাপিং করতে করে হেল্প করতে। আর ভোটার নিজেও ম্যাপিং করতে পারে, একটা ওয়েবসাইট আছে, পরে ডিটেল দিয়ে দেবো। ভোটার নিজেও ঢুকে তার নাম সার্চ করে এপিক নাম্বার দিয়ে আর নাম ডিটেল দিয়ে সার্চ করে নিজেও ম্যাপিং করতে পারে। दर्शकों के लिए सिटी टुडे न्यूज़ नेटवर्क ने चुनाव आयोग की वेबसाइट से एसआईआर से संबंधित तमाम दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए यहाँ मौजूद है। सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा कि बीएलओ आपके घर जाएंगे तो वो इम्यूनेशन फॉर्म किस तरह का होगा। ये फॉर्म देखकर आप समझ जाएंगे कि इसमें आपको क्या फिलअप करना है। ये फॉर्म लेकर बीएलओ आपके पास पहुंचेंगे। आप ये देख सकते हैं, ये फॉर्म हमारे पास मौजूद है। ये कमीशन ने मीडिया को मुहैया कराया है। अब कैसे फॉर्म भरें इस पर मैं आप लोग को थोड़ा बता दूं। यहाँ देखिए 3 अलग अलग तरह के फॉर्म हैं, 3 तरह के फॉर्म। पहला फॉर्म 6, ये फॉर्म 6 जो न्यू वोटर्स है उनके काम आएगा, वो इन्हें फिलअप करेंगे। फॉर्म 7 ऐसे वोटर्स जो अपना नाम हटवाना चाहते हैं, अगर उनका किसी और वोटर लिस्ट में नाम है या किसी दूसरे स्टेट में वोटर लिस्ट में उनका नाम है, तो वो फॉर्म 7 भरकर 2 जगह के स्थान पर एक जगह अपना वोटर लिस्ट पे नाम रख सकते हैं। फॉर्म 8, अगर आपके वोटर कार्ड में कोई गड़बड़ी है, उसमें सुधार करने के लिए आपको फॉर्म 8 भरना होगा। जनता की सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी सुविधा मुहैया कराई है। इलेक्शन कमीशन के voters.eci.gov.in या वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको अपने मोबाइल नंबर से पहले लॉगिन करना होगा, फिर अप्लाई फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन विकल्प को चुनना होगा। इसके बाद मांगी गई जानकारी जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस आदि सभी भरने होंगे और इससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। इस तरह से आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। আপনারা জানেন যে 27 তারিখে আমাদের জাতীয় নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবাংলায় এসআইআরের ঘোষণা করেছে। সেই সম্বন্ধেই আজকে আমাদের জেলা নির্বাচনী আধিকারিক আজকে আমাদের সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছিলেন। বিস্তারিতভাবে তারা আলোচনা করেছেন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা যা যা প্রশ্ন রাখছিলেন তাদের সম্বন্ধে সে সকল বলেছেন। এবং एसआईआर को लेकर जनता के मन में जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्हें जमा करने होंगे या कौन से डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग स्वीकारेगा। आप देख सकते हैं मेरे पास चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई वो पत्र है जिसमें मीडिया को आयोग ने पूरी जानकारी उपलब्ध कराई है। इस आधार पर मैं जनता की सुविधा के लिए ये साफ कर देना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर को लेकर 12 डॉक्यूमेंट्स निर्धारित किए हैं। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स भी अगर आप उपलब्ध करा पाते हैं तो आपका ना नाम कटेगा और ना ही आपके मतदाता सूची से कोई छेड़छाड़ की जाएगी। इन 12 डॉक्यूमेंट्स के नाम मैं बताने आप लोग को जा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग के पास उपलब्ध होने चाहिए, जिनमें पहला है पेंशनर पहचान पत्र, दूसरा किसी सरकारी विभाग द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, 10वीं की मार्कशीट यानी रिजल्ट, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अगर एनआरसी में नाम है तो वो प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर में नाम, जमीन या मकान आवंटन पत्र और अंततः सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आधार कार्ड को भी डॉक्यूमेंट्स माना गया है। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सारे जिलाधिकारी अपने अपने काम पर आयोग के निर्देशानुसार जुट गए हैं। इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो चुका है। प्रदेश की राजनीति
गर्व हो गई है। टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कई बार साफ तौर पर दावा कर चुकी है कि एसआईआर के बहाने भाजपा और केंद्र सरकार एनआरसी लागू करने की साजिश कर रही है। एसआईआर के विरोध में 2 नवंबर को कोलकाता में एक बृहद रैली भी बुलाई गई है, जिसका नेतृत्व स्वयं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी करने वाले हैं। वहीं भाजपा यह दावा कर रही है कि अगर बंगाल में सही रूप से एसआईआर हुआ तो लाखों लाख अवैध वोटरों के नाम यहाँ की वोटर लिस्ट से कट जाएंगे। राज्य के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी खुले मंच से यह साफ तौर पर कह चुके हैं कि एसआईआर होने पर बंगाल से 1 करोड़ वोटरों के नाम, जो अवैध वोटर हैं, ऐसे 1 करोड़ अवैध वोटरों के नाम लिस्ट से कट जाएंगे। आपको यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, ये इलेक्शन कमीशन द्वारा उपलब्ध कराया गया डेटा है। इसमें तमाम 12 राज्यों के डेटा है। ये डेटा 2002 में आखिरी बार जो एसआईआर हुआ था उसका डेटा है। उस डेटा के हिसाब से पश्चिम बंगाल में 2002 में वोटरों की संख्या करीबन 7 करोड़ 67 लाख थी। उस दौरान पोलिंग स्टेशन 80,681, बीएलए पॉलिटिकल पार्टी के जो बीएलए होते हैं उनकी संख्या 18,114, ईआरओ और असिस्टेंट ईआरओ की संख्या 3,353 और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जिन्हें हम साधारणतः डीएम के नाम से जानते हैं, उनकी संख्या 24 है। तो दोस्तों, एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एसआईआर को लेकर किसी तरह की गलतफहमी में ना पड़े, किसी के झांसे पे ना आए। इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्देशों का पालन करें, डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराएं और शुद्ध मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं। नमस्कार। दुर्गा पूजा का त्योहार और फैशन में हो सबसे आगे। बॉयज, गर्ल्स, लेडीज, जेंट्स या फिर नन्हे मुन्ने बच्चे, हर किसी के लिए है बालाजी फैशन का धमाकेदार कलेक्शन। यहाँ मिलेगी हर तरह की स्टाइलिश साड़ियाँ, डिजाइनर सलवार सूट, मॉडर्न और पारंपरिक लहंगे, ट्रेंडी फैशन आउटफिट्स, सब एक ही छत के नीचे। और सुनिए, दुर्गा पूजा की खास मौके पर ढेर सारे आकर्षक नए डिजाइन के साथ आपके हर त्योहार को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आज आइए बालाजी फैशन में, आसनसोल जीटी रोड अपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट। बालाजी फैशन, हर घर की पहली पसंद, जहां फैशन और त्योहारों का जश्न मिलता है साथ साथ। संपर्क करें 034123000170। बालाजी फैशन, स्टाइल का नया नाम, हर त्योहार का असली रंग। शाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। নতুন বাড়ি কি করে সাজাবো বুঝতেই পারছি না, পেয়ে গেলাম থ্যাংক ইউ ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড। চলো দেখি এখানে কি কি বিশেষ আছে। ডাইনিং টেবিলও অসাধারণ, ক্লাসিক থেকে শুরু করে একদম মডার্ন পর্যন্ত। ড্রেসিং টেবিলের সম্ভার, ওয়াও এত ডিভান্স। সোফা সেটের অ্যাট্রাকটিভ কালেকশনস। উফ, আর পাচ্ছি না, কোনটা নেব? সবই একই অপরের চেয়ে দারুণ। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া। सिटी टुडे न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल, बालाजी फैशन और आरती एंड सन्स।